So dear friends, today we are going to solve some of the numericals regarding the Wheatstone bridge and meter bridge. आज हम Wheatstone bridge और meter bridge के regarding कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ओके, अब देखिए मैंने आई हैव ड्रॉन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क बना रखा है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है दिखने में, ठीक है, बट इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। अब देखिए ए से बी ने 1 ओम का रजिस्टर लगाया, देन बी टू सी, ए बी सी, मतलब पॉइंट्स जो है एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं, ए बी सी डी, ओके, लाइक दैट। ए टू बी 1 ओम का रजिस्टेंस लगाया, देन बी टू सी 2 ओम का रजिस्टर लगाया, देन सी टू डी 4 ओम का रजिस्टर लगाया, एंड बी डी वी विल डिस्कस लेटर, ओके। तो हम ऐसे ही करते हैं कुछ, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ठीक है। अब ए से बी, दैट पॉइंट इज ए एंड दैट पॉइंट इज बी। ए से बी वी हैव 1 ओम, ठीक है। नाउ बी टू सी, ओके, हियर वी हैव पॉइंट सी, ओके। बी टू सी वी हैव 2 ओम, यहाँ पर कितना है 2 ओम। नाउ C to D means there is some point here, C to D, okay. C to D we have 4 ohm, okay, 4 ohm, and then D to A, okay, D to A, here see, D to A we have 2 ohm resistor, okay, 2 ohm, and from B to D we have 5 ohm resistor here. So this is our Wheatstone bridge. And from A to C, this is connected with a battery of 4 volt, and we have to find a current in this circuit, okay. We have to find out the current. So हमें current निकालना है. Now whether we have to check whether this Wheatstone is balanced or not. If Wheatstone is balanced, then our job is very simple. And if Wheatstone bridge is unbalanced, then we have to do a calculation. हमको थोड़ी ज़्यादा calculate करनी पड़ेगी. What is the method to balance, check the balancing? We know that suppose this is R1, okay, this is R2, this is R3, and this is R4, okay. Let R1 is 1 ohm, R2 is 2 ohm, R3 is 2 ohm, and R4 is 4 ohm. So the condition for the balanced Wheatstone bridge is R1 upon R2, okay, R1 upon R2 equal to R3 upon R4. That is the condition for the balance. Either you can take R1 upon R3 or R2 upon R4, okay. Now see, R1 is 1 ohm, R2 is 2 ohm, and here R3 is 2 ohm and R4 is 4 ohm, okay. So 2 to the 4, again we are getting 1 by 2 equal to 1 by 2, means this Wheatstone bridge is balanced. What does it mean, student? If the Wheatstone bridge is balanced, that means this point B and this point D are at same potential, and we can neglect this branch, okay. There is no current flowing in this branch, we can neglect this branch. Now see student, हमको current calculate करना है. अब इस branch में आप देखिए, मान लीजिए यहाँ से current I निकला, okay, and this goes to here, यहाँ पर divide हो गया, okay, यहाँ पर I1 गया, and इस branch में from A to A B C I1 गया, और यहाँ पर करंट गया I2, ओके, यहाँ पर करंट गया I2. नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पर करंट सेम है, 1 ओम के अक्रॉस भी I1 है और 2 ओम के अक्रॉस भी I1 है. करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, A और B का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, B और C का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है. सो दे आर सेड टू बी इन सीरीज, तो मतलब 1 और 2 ओम सीरीज में है. इसी प्रकार 2 एंड 4 ओम सीरीज में, दे आर सेड टू बी इन सीरीज, ओके. सो द इक्विवेलेंट नेटवर्क, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, ओके. सो इक्विवेलेंट नेटवर्क वी कैन ड्रॉ 1 plus 2 is 3, okay. So from A point, okay, I am drawing here, it is 3, okay, and 2 plus 4 is 6 because they are in series, okay. So this point is A, okay, and this point is C, and here the current I1 is flowing, and here the current I2 is flowing, and here the resistance is 2 plus 4 6 volt, okay, and externally battery is connected 4 volt की बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है, ओके. नाउ
we can see these two resistors are in parallel. ये दो resistance है ये parallel में, because across AC the voltage is 4 volt and तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, सेम होता है और करंट अलग अलग होता है, देन द रेजिस्टेंस आर सेड टू बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द टू रेजिस्टर्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला है 3 × 6 अपॉन 6 + 3. ओके, तो 6 3 18 एंड 6 + 3 9, दैट इज 2 ओम. यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा इतने पार्ट का, वो निकलेगा 2 ओम. अगेन आई एम रफिंग दिस ईयर. ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ. ठीक है, 2 ओम निकलेगा. दैट मीन्स नाउ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ओम. ओके, एंड इट्स कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट. ओके, नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट यूजिंग द ओम्स लॉ V = IR. ओके, हमको करंट ही निकालना था. व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी. ओके, एंड आल्सो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द I1 I2 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो V = IR, 4 = I इज व्हाट, I हमको निकालना है एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम निकला है. दैट मींस I = 2 to the 4. ओके, सो I = 2 एम्पियर. ओके, नाउ 2 एम्पियर वो करंट जो कि यहाँ से निकलेगा और फिर यहाँ पर ये बटेगा. ठीक है, ओके, दैट थिंग वी कैन आल्सो डू. मैं कर ही देता हूँ. ठीक है, दैट थिंग वी कैन आल्सो डू. ओके, तो यहाँ से निकला 2 एम्पियर करंट. ओके, 2 एम्पियर करंट यहाँ से निकला I = 2 एम्पियर करंट एंड फ्रॉम इन दिस ब्रांच I1 गोज, इन दिस ब्रांच I2 गोज. ओके, ठीक है. सो नाउ अब देखो I जो है 2. अब देखो इन दोनों के अक्रॉस, A और C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, यानी कि इस 3 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना कि 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर. पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, I1 × R, I1 × 3 एंड और यहाँ पर 6 में I2 × 6. ओके, I2 × 6, दैट इज द एक इक्वेशन हमारे पास है. नाउ अनदर थिंग वी नो दैट दिस I is equal to I1 + I2 is equal to I1 + I2. ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई एंड दैट इज इक्वेशन सेकंड. ओके, नाउ I is equal to I1 + I2. आप किसी भी वैल्यू को I1 की जगह से I1 को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं हम यहाँ पर, तो I1 की जगह निकल जाएगा that 2 = I1 + I2. ओके, so I1 will be 2 - I2 = I1. ओके, 2 - I2 will be I1. तो फिर I1 की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को. ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी आर गेटिंग 2 - I2 × 3 = I2 × 6. ओके, सो 3 × 6, 6 - 3 I2, मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 6 I2 दिया. ओके, तो 6 इज 9 I2, इसको इस तरफ ट्रांसफर किया एंड I2 इज 6/9. ओके, I2 इज बेसिकली 3 × 6 and 3 × 9. ओके, सो हियर I2 इज 2/3. ओके, similarly you can calculate the I1 2 - I2, 2 - 2/3. So that this is the question of Wheatstone bridge that has been asked in the CBSE 2015 and 2009. This question is asked in the CBSE 2015 and 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया. तो बेसिकली यहाँ पर सीरीज पैरेलल का हमको देखना था. Wheatstone bridge का क्वेश्चन था. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम ऑन मीटर ब्रिज, क्योंकि जो मीटर ब्रिज है दैट इज बेस्ड ऑन द Wheatstone bridge. ओके, दैट इज बेस्ड ऑन द Wheatstone bridge. तो मीटर ब्रिज के भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में. सो वी विल डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द मीटर ब्रिज का भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ मीटर ब्रिज हियर. यहाँ पर एक मीटर ब्रिज है. ठीक है, ये इसका लेफ्ट में एक रेजिस्टेंस लगा है, दैट इज 5 ओम, एंड इन द राइट गैप देयर इज अ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ S. एंड यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर हमने देखा एंड जो कि यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ दे रही, मीन्स
एट दैट पॉइंट गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, नल डिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट का रेजिस्टेंस है P और लेंथ है L1, और इस पॉइंट का रेजिस्टेंस है Q और लेंथ है 100 माइनस L1। ओके, ये तो पहली कंडीशन थी। नाउ सेकंड कंडीशन में हमसे पूछा गया है कि अगर आप इस S को इक्वली इस S के साथ इसी के बराबर का रेजिस्टेंस इसमें शंट कर देते हो, मतलब पैरेलल में लगा देते हो, ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ S एंड L1। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हम लोग कहते हैं, पहले तो हम लोग मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है दैट यू कैन राइट R अपॉन L1 इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L1। ठीक है, तो R इज 5 अपॉन L1 इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L1, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। इन द नेक्स्ट पार्ट S इज शंटेड, इस S को हमने शंट किया एक और रजिस्टर के साथ इसी की वैल्यू, मतलब हमने एक S रेजिस्टेंस को इसके साथ शंट किया, यानी कि पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो L1 है वो 1.5 L1 हो गया, इस कंडीशन में जो L1 है 1.5 L1 हो गया, और ये हो जाएगा 100 माइनस 1.5 L1। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, यू कैन इजीली कैलकुलेट S इंटू S अपॉन S प्लस S, सो S स्क्वायर अपॉन 2S विल बी S बाई 2, तो इसका इक्विवेलेंट S बाई 2 होगा। तो हम फिर से एक इक्वेशन बना लेंगे, दैट इज R इज 5, ये 5 ओम है, 5 ओम, ठीक है, S नहीं है, 5 ओम है। सो 5 अपॉन 1.5 L1 इक्वल टू दिस इज S बाई 2 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। ओके, नाउ यू हैव टू इक्वेशन, आपके पास दो इक्वेशन है। ओके, और आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, यहाँ पर S और यहाँ पर L1। ठीक है, तो आप इन इक्वेशंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप 5 देखिए, इस इक्वेशन को गौर से देखिए, 5 अपॉन L1 इज कितना लिखा है, S अपॉन 100 माइनस L1। ठीक है, तो इस 5 अपॉन L1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, S अपॉन 100 माइनस L1, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर S अपॉन 100 माइनस L1 इंटू 1.5। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू S बाई 2 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। तो देखिए स्टूडेंट, ये S कैंसिल हो गया। अब आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो और आपको L1 और S की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो मीटर ब्रिज बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है इसका, व्हीटस्टोन ब्रिज पर पहले बेस क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान होता है। जनरली कभी कहा जाता है यहाँ पर S लगा दी, इसके पैरेलल में हमने शंटिंग कर दी, मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस S लगा दिया, तो लेंथ बैलेंसिंग लेंथ बदल गई। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे और सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द L1 एंड S। ओके, दिस थिंग यू कैन डू, आप ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, इसलिए आप S एलिमिनेट हो चुका, L1 ही बचा हमारे पास, सो वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो इस तरीके से हमने दो न्यूमेरिकल्स देखे, एक व्हीटस्टोन ब्रिज और उसका एप्लीकेशन एक मीटर ब्रिज। ओके, एंड इन योर CBSE प्रैक्टिकल्स द मीटर ब्रिज इज देयर, मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल हम आपको कराएंगे लैब में। सो तैयार रहना स्टूडेंट।